Hello everyone. So we are starting with our session now. I hope Dr. Lalit will connect soon with us. I'm just waiting for Dr. Lalit to connect and for some viewers to connect, and then we'll start with our session. As soon as Dr. Lalit will connect with us, I'll just start this session. Thank you everyone who are there. I hope we'll have some more viewers now. So before starting with the session, I would tell you all that today's session is on depression, and with Dr. Lalit, we'll be connecting with some points like physical isolation, fear of contagion, loss of family members, and unemployment. On these 4 points, which will be told by Dr. Lalit, these 4 points will be covered under depression. This session was rescheduled, so we are here at 5 p.m. now, and I think people are going to see us live. Yeah, Dr. Disha, you're right. I hope there will be no network issue now. I'm just waiting for Dr. Lalit to start with this session. Dr. Lalit is connecting from us from Lucknow University. He's an assistant professor at Department of Psychology in Lucknow, and he's a clinical psychologist. He has done his PhD in clinical psychology. So we have managed successfully to gain his time to get this hour for us at AHA. This is our third live session conducted by me. I have just got an inquiry. Okay, we'll be starting the session soon. Yeah, thank you everyone. Your time matters, your presence matters. Just a minute or so, Dr. Lalit will be here. I hope today's session will be clear to all. If anyone is having any trouble with this session, please comment, and if anyone will be having his query, please comment us, and we'll be answering his all queries in the end of this session. Dr. Lalit will be coming up soon. He's stuck with something. No worries. As I already told you about physical, social isolation, fear of contagion, loss of family members, and unemployment will be our topics today in depression. We'll be covering this. Then we'll be asking Dr. Lalit, how can we combat this situation? Interruption. Sorry for this poor connection. I'm adding Dr. Now we'll be starting this session. Hello, sir. हेलो जी Am I नमस्कार audible? नमस्कार सर. yes नमस्कार. yes yes नमस्कार कैसे हैं आप सर? yes I can hear your voice very clear not unlike Okay, before that's I'm good. good That's good. I was just telling everyone about you and about our session today. okay Yeah. happy to be with So you all thank you, sir. Thanks a lot. And Hmm. I'll introduce you now. Dr. Lalit okay Kumar Singh is us, and he'll be talking about depression. And we have already told everyone that we'll be covering our points like physical isolation, fear of contagion, loss of family members, and unemployment today. yeah So
I want you to introduce yourself a bit, and then you start with depression. Okay. Well, I feel very nice with you all, and it is a matter of great happiness for me that I am talking to you via this digital technology. And my Thank you, basic sir. information is that I'm a clinical psychologist by profession, and I have taken my basic education from Delhi University. I have done my MPhil in clinical psychology, which is a professional degree in the field of clinical psychology. And I have also worked in Agra Mental Hospital, and I have worked there as an assistant professor for almost 5 6 years. And there I used Okay. to provide my services in OPD setup and in the ward setup as well. Along with this, also I have been engaged in teaching of MD students, DNB students, MPhil students, MA students, and nursing students also. Right now, I'm currently engaged with the University of Lucknow in the Department of Psychology as a faculty over there. Okay. So it was very good to hear you, sir. So I Yeah. want you to express your views about depression. Depression is a kind of psychological problem which is very much common in our environment. Though it has Okay. always been very much common, but in today's scenario, the presence of depression is not really difficult to be identified. Lots of people are complaining about them having depression and depressive features because it can easily be understood that in today's environment, it is really difficult to maintain and protect your mental health because you don't get the opportunity to meet people as you used to, and you don't have Yes. social networks, you don't have meeting places, you don't have gatherings, you don't have sharing. So all these things easily can be understood that are very much important in order to manage the mental health. So in the Okay. absence of social sharing, social gathering, sharing, and other social platform, and if simultaneously people are not aware for themselves in terms of their Ji. understanding, their emotions, their thinking, their judgments, and all these things, so Ji. it is very much common that they can have dull phases in their life. And these dull phases where they don't feel like talking, they don't feel like eating, they don't feel like going for regular work and maintaining social contacts, all these things can be seen as a preliminary information or symptoms of depression. So primarily it is very important for us to understand that have depression has three main characteristics. One Okay. is worthlessness. I am not good for anything. Me better good qualities in me. Worthlessness is one of the identifying character of depression. Okay. Hopelessness. Nothing can be done in the future. My future is complete dark black slate. So these are two symptoms of depression: worthlessness, hopelessness, and helplessness. I am not able to do anything. People can say in these lockdown period that it seems to me that I have not become good. I have not left anything good with. I cannot do anything. There is nothing I can do. So these three characteristics are very much important to understand by us being a professional in the medical field, that feeling of worthlessness, feeling of hopelessness, feeling of helplessness are the characteristic of depression. Along with this, in normal day-to-day environment, day-to-day communication, you can see that depressive people will not talk to the people like they used to do. Depressive people Yes. will not share their things. Depressive people will not follow their daily routine. You will see that drastic change in their appetite, sleep, sexual behavior, and the dullness and sadness. Crying spells are very much common in them. They can feel sadness, they can feel Okay. disturbances of mood very easily. Okay. Yeah, That is very nice, sir. Sir, yeah. I want you to tell us uh, Hmm. कुछ ऐसी चीजें, because you have a very wide experience in this clinical psychology. कुछ Yeah. ऐसी चीजें आप हमें बताएं, कुछ ऐसे टिप्स आप हमें दें कि हम इस डिप्रेशन Hmm. से बच सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा Uh, फेज हमने 2 महीने hmm. में Hmm. गुजारा है कोविड 19 का. Hmm. अब बहुत सारे Hmm. ऐसे लोग हैं जो डिप्रेसिव स्टेट में जा चुके हैं किसी ना किसी वजह से. तो Hmm. ऐसा क्या है जो आप सजेस्ट Hmm. करते हैं? देखिए, डिप्रेशन होना बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि बुखार होना कोई बड़ी बात नहीं है.
है ना? ओके सर्दी खांसी जी होना कोई बड़ी बात नहीं है ना? इट बिल्कुल इज ठीक वेरी है मच नॉर्मल टू हैव डलनेस इन लाइफ, डलनेस इन थॉट्स, डलनेस इन mental status and thinking, but the most जी important thing is that how you can manage once you have developed it. ओके सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हो गया है तो अब क्या किया जाए। इसका मतलब हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा कि हम कुछ जरूर ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है हमने अपने आप को डिस्करेज करना शुरू कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए था। हमने अपने आप को हेल्पलेस फील करना शुरू कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था। और हमने अपने आप को ये दे दिया है, भरोसा दे दिया है कि अब तो भविष्य में भी कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी ओके थिंकिंग जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है। और थिंकिंग जब डिस्ट्रक्टिव होने लगती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होने लगती है, तो उसके साथ साथ हमारे बिहेवियर भी बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होने लगते हैं। मतलब हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं डिप्रेशन के एक पेशेंट को कि आप सुबह उठिए और वॉक करके आइए, वो नहीं करेगा, बोलेगा मन ही नहीं करता है। जी इसका मतलब ये हुआ कि इलाज तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में ही छुपा हुआ है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में ही छुपा हुआ है। डिप्रेशन के जितने भी लोग हैं, सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं बल्कि जितनी भी मानसिक बीमारियां, एंजाइटी हुआ, फोबिया हुआ, पैनिक डिसऑर्डर हुआ और भी हैं, सबको इस बात को बिल्कुल मूल मंत्र मान के चलना चाहिए कि उनको अपना डे टू डे एक्टिविटी बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखने की जरूरत है। उनको अपने ओके दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और सकारात्मक व्यवहार के साथ करनी चाहिए, जिसमें कि मॉर्निंग वॉक एसेंशियल होना चाहिए। दूसरा, ओके जब भी किसी को डिप्रेशन होता है तो हमेशा याद रखिएगा उनका सोशल सपोर्ट बहुत गड़बड़ हो जाता है। जितने भी सुसाइडल पेशेंट है, जितने भी डिप्रेसिव पेशेंट है, वो आप हमेशा ये देखेंगे कि उनका सोशल सपोर्ट वीक हो चुका है, लोग उनसे ज्यादा बात नहीं करते या वो खुद बात नहीं करते हैं। इसका मतलब जी डिप्रेशन के पेशेंट को हमेशा सोशल गैदरिंग की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब गैदरिंग की तरफ जाने का मतलब ये है कि उसको लोगों के बीच में रहने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों से शेयरिंग ठीक करनी है चाहिए, लोगों को आइसोलेटेड सुनना नहीं रहना चाहिए। चाहिए जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली ओके है ना? और अब आप देखिए जी कि आजकल के दौर में आदमी आइसोलेट तो हो ही गया है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल बहुत सारे क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों ने सुसाइड सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि वो सेक्लूडेड हो गए थे। जी समझ रहे हैं? तो सोशल जी गैदरिंग, सोशल शेयरिंग, गैदरिंग छोड़िए, सोशल शेयरिंग, सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है डिप्रेशन से लड़ने के लिए। तो हमें ओके ये जो समझना है वो ये समझना है, अगर मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है भी, तो कि ये नॉर्मल बात है। डिप्रेशन होना कोई बहुत अपराध नहीं हो गया, या इसमें शर्म की बात नहीं है। जैसे बुखार होता है, आता है चला जाता है, डिप्रेशन भी होता है, आता है चला जाता है। अगर ओके डिप्रेशन को दूर भगाना है तो हमें अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाना चाहिए। मतलब दिन की शुरुआत बिजी तरीके से करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वॉक करिए, ठीक घर का काम करिए, नहाइए धोइए, पढ़ाई करिए अपनी, ठीक है? और साथ साथ में ये भी मान के चलिए कि हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माय लाइफ व्हिच इज रियली डिस्टर्बिंग, बट आई विल बी एबल टू मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ माय बेटर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। जी 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 सर एक क्वेश्चन है इसी कि प्रोबेबिलिटी से डिप्रेशन कितना रिलेट करता है कि अगर हम ये मान जी लेते जी, हैं कि आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करें। सर प्रोबेबिलिटीज से ये डिप्रेशन हम्म कितना रिलेट करता है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें ये चीज करनी है ये ऐसी ही होगी हम्म और फिर वो नहीं होती हम्म है तो किस किस तरीके से हम हम्म। बताएं देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब तो बहुत डायनेमिक है, इसमें क्लियर नहीं हुआ है आपके सवाल से प्रोबेबिलिटी का क्या मायने हुआ है। लेकिन हमें जी ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन की एक ऐसी कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है। बिल्कुल डिप्रेशन की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाएगी अगर व्यक्ति सोशली सेक्लूडेड है। डिप्रेशन की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाएगी अगर व्यक्ति के बिहेवियर में डिसऑर्गेनाइजेशन है। डिप्रेशन की ओके प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाएगी अगर किसी व्यक्ति का सोशल सपोर्ट गड़बड़ है, कंस्ट्रक्टिव डे उसका नहीं है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनहेल्दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिप्रेशन इन एनी इंडिविजुअल विल बी हाई इफ देर इज समथिंग lacking in terms of cognition as well as in terms of behavior. ओके 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 चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपने ये सब बताया हम्म आइए सर हम बात कर लेते हैं अब अपने 4 मेन पॉइंट्स के बारे में तो मैं जी आपसे जानना चाहूंगा कि फिजिकल आइसोलेशन और सोशल आइसोलेशन बेसिकली जो हमने हम्म कोविड-19 में बहुत देखा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं देखिए, सोशल आइसोलेशन और फिजिकल आइसोलेशन में बड़ा काफी फर्क है। जी फिजिकल आइसोलेशन में अगर आप किसी को रखेंगे तो जरूरी नहीं कि उसको डिप्रेशन हो जाए। लेकिन अगर सोशल आइसोलेशन में आपने किसी को रखा है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि लोगों को डिप्रेशन होगा।
अभी एक सेमिनार कल हो रहा था सागर यूनिवर्सिटी में, वहां पे कोई डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक रिसर्च शेयर करी थी कि क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी होने की संभावना ज्यादा है बजाय उनके कि जिन लोगों को क्वारंटाइन में नहीं रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों से स्टिग्मेटाइज्ड बिहेवियर फॉलो किया जाता है, उन लोगों को लेबल कर दिया जाता है। समझिए कि सोशल आइसोलेशन या क्वारंटाइन जो एक फेज और कंडीशन होती है, ये जी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों को जिनको ओके सोशल आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन रखा गया है, उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ी है और डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। उनका सेल्फ स्टीम खत्म होने लगता है जब आप किसी को क्वारंटाइन कर देते हैं। उनका सेल्फ स्टीम, जी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ वर्थ, इसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। जबकि फिजिकल ओके आइसोलेशन अलग चीज है। लेकिन ये देखिए, अब लोग ये भी कह सकते हैं कि जी फिजिकल आइसोलेशन ही तो सोशल आइसोलेशन है। नहीं, आप फिजिकल आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि आपने किसी के साथ अपनापन नहीं खोया है, अपनापन का व्यवहार आप कर रहे हैं, भले ही आपने उसको फिजिकल डिस्टेंस में रखा है। लेकिन जी सोशल आइसोलेशन जो कि क्वारंटाइन सेंटर में हो रहा है, लोगों की सोच को बदलना थोड़ा मुश्किल है। लोग अब बिल्कुल लोगों बिल्कुल को ब्लेम करने लगते हैं कि जरूर ये बदमाश आदमी है तभी इसको कोरोना हुआ है। ये सोशल आइसोलेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, ये सोच। ओके। तो जी। हमारे हिसाब से कि जो आपने हमें बताया, फिजिकल आइसोलेशन हम्म। तो नेसेसरी है बट सोशल आइसोलेशन नहीं करना चाहिए। देखिए, सोशल आइसोलेशन आदमी की एटीट्यूड से झलकता है ना, जी उसकी सोच से झलकता है, उसके शब्दों से झलकता है। अब जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। श्रमिक ट्रेन जो अलग अलग स्टेशन पे रुकती है, वहां पे जब उनको बिल्कुल खाना देने की बारी आई, जो यात्रा कर रहे थे श्रमिक, तो रेलवे के जी लोगों ने उनको दूर से फेंक फेंक के खाना दिया। तो ये आप सोशल आइसोलेट तो कर ही रहे हो, आप उनके साथ सोशली आइसोलेट, स्टिग्मेटाइज्ड बिहेवियर कर रहे हो। लोगों को तब पता ही नहीं चांसेस है कि वो इंक्रीज ऐसा हो कर जाते रहे हैं। हैं। जी जी बिल्कुल, जी अब आप समझिए ना, अगर कोई हमारी सेल्फ आइडेंटिटी हमसे छीन लेगा और हमको कोरोना का बिल्कुल पेशेंट बना के लेबल कर देगा, तो हमको कैसे नहीं डिप्रेशन होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। जी। बिल्कुल। जी। चलिए सर, हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपने, फियर ऑफ कंटेजियन। हम्म। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर, फियर ऑफ कंटेजियन के बारे में? देखिए, फियर ऑफ कंटेजियन का मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसको संक्रमण ना हो जाए। जी ठीक है। आज के दौर में आप देखेंगे बहुत सारे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पेशेंट हैं जो इस डर के साथ आते हैं, इस एंजाइटी के साथ आते हैं कि वो अभी रास्ते से गुजर रहे थे, कोई खांस रहा था, कहीं उनको तो कोरोना नहीं हो गया। बिल्कुल, कोरोना नहीं या हो गया। जी हाँ हाँ हाँ, अब और उन्होंने अगर अपने अगल बगल में सुना कि हाँ यहाँ से एक आदमी थोड़ी देर पहले गुजरा था जिसको क्या नाम है, उसने किट लगा रखी थी अपने अंदर, तो उनको कोरोना तो नहीं हो गया। आपको एक और चीज बता दूं, कंटेजियन का जो कॉन्सेप्ट है या कंटेजियन की जो भावना है जनमानस के अंदर इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि जो जी डॉक्टर कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उन तक को लोग नहीं उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग हम्म, रहा है कि ये डॉक्टर से उन्हें ना हो हमें भी जाए। हो जाएगा। जबकि बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं। अलग है कि वो डॉक्टर तो उनका इलाज कर रहा है। ठीक बात है। लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि इस डॉक्टर के संपर्क में हम रहेंगे तो हम ज्यादा बचे रहेंगे, लेकिन हालत कंटेजियन और कंटेजियस एटीट्यूड की इतनी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है कि जो डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं कोरोना से, उन्हीं से लोग नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उनको जी अब ये उनकी अपनी सोच हो सकती है जो बहुत ही सीमित और लिमिटेड कंजर्वेटिव बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से उनको ओके, लग रहा है कि उसको डॉक्टर की वजह से हमको भी कंटेजियस इन्फेक्शन हो जाएगा कोरोना का। इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं। तो ये समाज के अंदर एक सोच हो गई है जिसमें कि उसको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। भाई, ओके जो लोग कोरोना का इलाज कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कोरोना हो रहा है। 90% लोग तो कोरोना से मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। इनफैक्ट बिल्कुल। कोरोना को तो बचा ही वो लोग रहे हैं जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। जी 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 लेकिन जी लोगों के अंदर इसको डॉगमेटिक बिलीफ आप कह सकते हैं, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग कह सकते बिल्कुल हैं, ठीक कह जिसकी रहे हैं वजह आप। से जी, लोगों को ये लगने लगा है कि हम चाहे कुछ ना करें तो भी हमें कोरोना हो जाएगा। कोरोना तो हो ये उनकी जाएगा। डर की वजह से हेल्थ एंजाइटी, इसको हम साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं। हेल्थ एंजाइटी जी उनको इतना ज्यादा है कि उनको लगता है कि अगर मान लो बगल में कोई खांस दिया तो कोरोना ही होगा। हम्म, तो ये फियर ऑफ कंटेजियस इलनेस की वजह से ऐसा हो रहा बिल्कुल। सर है। जी। आइए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हम अक्रॉस द वर्ल्ड ये देख ही रहे हैं कि काफी सारे लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से। जी। जी। जो जी। जी। कॉम्प्लिकेशंस भी थी आज तक, काफी सारी डिजीजेस और भी थी, बट सबने एक लेबल हम्म। लगा दिया कि ये जो पेशेंट मर गया वो कोरोना की हम्म। वजह से ही गया।
तो सर जी इस तरीके का जो हालत चल रही है, इसमें जो लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स से जो लोग गुजर रहे हैं, उसमें हम्म। डिप्रेशन के चांसेस या उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो वाकई सच है कि जिस व्यक्ति के घर से कोई व्यक्ति, मान लो किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति कोरोना की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये अब एक ऐसा नुकसान है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल। लाइफ में भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं, भले ही अगर किसी को किसी और चीज से किसी की मृत्यु हुई तो भी नहीं हम पूरा कर सकते। लेकिन जी। कोरोना के जाने के बाद किसी व्यक्ति के खालीपन को भरना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ सोसाइटी का इसमें एक ठप्पा लग जाता है। हमारी सोसाइटी हम्म। उस घर को, उस घर में रहने वाले लोगों को उसी नजरिए से देखने लगती है। जो अभी आप फियर ऑफ कंटेजियन की बात कर रहे थे, तो हमारी जी। सोसाइटी उस घर में रहने वाले लोगों को, भले ही उनको कोरोना ना हो, लेकिन उनको हम्म। उस स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग के साथ देखने लगती है। ऐसी स्थिति में जिस परिवार ने अपना एक सदस्य कोरोना की वजह से खो दिया है, उसके लिए फिर से अपने पैरों पे खड़े होना, फिर से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना, फिर से अपने जिंदा रखने के लिए अपने आप को खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बिल्कुल स्थिति में बिल्कुल। हमको अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से रेडियो मोबाइल पे जो मैसेज दिए जा रहे हैं कि हमको कोरोना से लड़ना है, कोरोना से जी। लड़ने वालों को हराना नहीं है। भले ही बिल्कुल मान लो बिल्कुल। किसी परिवार को अगर कोरोना हो गया है, तो हमें उनको इसके लिए हतोत्साहित नहीं करना है कि तुम गड़बड़ आदमी हो या तुमने गड़बड़ काम किया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको इसलिए अपने जहन में और ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि समाज तो हम ही लोग मिलके बनाते हैं ना। अगर हम जी ही सर। अपने आसपास और पड़ोसियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करेंगे तो ये कैसे चलेगा। और देखिए बिल्कुल स्थिति ठीक। तो इतनी बदतर हो गई है कि लोग जिसके बोलते हैं मानवता की जो थोड़ी सीमाएं कम, को कोरोना हो गया था, उन लोगों ने अपने उस सदस्य को ही बाहर छोड़ दिया। या तो ये ये टिपिकल सारा सिचुएशन का है। सारा, जी जी, ये सारी की सारी जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, इससे हमें सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है कि हमको जी। बीमारी से लड़ना है। जिस व्यक्ति को बीमार से बीमारी नहीं। हो गई है उससे नहीं लड़ना है, उसको बिल्कुल बिल्कुल। मरने से पहले ही नहीं मार देना है। या उसको अगर हम इस तरह भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार करेंगे तो उसके लिए तो जिंदा रहना और फिर से खड़ा होना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी हमें साइकोलॉजी ही आपसी नहीं रहेगी पूरी। सौहार्द, जी, हमें आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम अपने पास पड़ोस को बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें हैंड इन हैंड नहीं, अगर फिजिकल आइसोलेशन की बात करें, बट नहीं, कनेक्टेड रहना आप है हार्ट देखिए टू हार्ट। जी जी, आप फिजिकल आइसोलेशन बिल्कुल करिए, बहुत जरूरी है, इनफैक्ट करना भी चाहिए आपको। जी। जैसे आप लोग का मतलब, हम लोग को हेल्थ हाइजीन बहुत अच्छा नहीं था हम लोगों का पहले, कैसे भी बैठ बिल्कुल जाते थे, बिल्कुल। कैसे भी उठ जाते थे। ठीक है, आप कह सकते हैं 100 साल पहले नेचुरली इतना एनवायरनमेंट बेहतर था कि जर्म्स एंड वायरसेस इतने नहीं थे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत थी। आज के दौर में जी। तो हम फिजिकली और मेडिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग नहीं बचे हैं। तो ऐसे दौर में बिल्कुल हमें अलग तौलिया अगर हम रखते हैं तो कोई बुरा बात नहीं माननी चाहिए इसको। अलग तौलिया बिल्कुल। रखना तो हेल्थ हाइजीन का एक सिंबल है, इंडिकेटर है। तो ये हमारी मजबूरी है जिसको नेचर ने हमसे जबरदस्ती करवा दिया है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल जी। डिस्टेंसिंग, आप साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग ना करिए उसमें। ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक सर जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है। हमने ये भी हम्म। देखा कि बीते दिनों में कई लोगों ने अपने जॉब्स खो दिए, कई कंपनी शट हो गई। जी अभी लास्टली एक रिपोर्ट जी। आई है, आई डोंट नो इट हम्म इज अ फेक रिपोर्ट और अ गुड रिपोर्ट, हम्म बट हम्म। एटलस कंपनी ने भी अपना प्लांट शट कर दिया। जी 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 जी। तो सर ऐसे पॉइंट पे एक बात उठती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एक जरिया बन सकता है डिप्रेशन का? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अब आप ऐसे समझिए डॉक्टर साहब कि 90% लोग, जी। 95 या 90% अगर हम गलत ना बोलें, तो दे आर बिल्कुल। फाइनेंशियली ओरिएंटेड, है ना। या। एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय द लाइफ, एंड इन ऑर्डर टू एंजॉय द लाइफ व्हाट यू नीड इज मोस्ट मनी, मनी। फाइनेंसेस। सो अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन से उसके आय का जरिया ही छीन लेंगे तो उसके मानस पटल पे तो बहुत गहरा धक्का लगेगा। उसकी सारी बिल्कुल। उम्मीदें, बच्चों के भविष्य, उसका अपनी बीमारी, माँ बाप की बीमारी, उसके अपने सपने, बीवी के साथ जो समय बिताते हैं, 4 पैसे का सामान लाके खुश हो जाते हैं, गरीब तबका जो है उनका तो भविष्य खत्म हो गया ना। तो आप बिल्कुल कैसे ठीक कह कह रहे हैं। सकते हैं किसी, और ये वो लोग हैं जिनके पास आय का और कोई जरिया नहीं है। इनके पास खेती नहीं है, किसानी नहीं है, धंधा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, जमीनें नहीं है, सिर्फ एक नौकरी है।
अगर किसी जी रोजगार में जुड़े हुए व्यक्ति की नौकरी ही छिन गई, उसका आय का जरिया खत्म हो गया, तो उसके पास सबसे पहला सवाल ये आएगा, कल का आटा कैसे आएगा, रोटी कैसे हम्म, बनेगी। और ऐसी स्थिति जी में हर व्यक्ति तो इतना आध्यात्मिक नहीं होता ना कि वो सोचे कि चलो ये दौर भी चला जाएगा, क्योंकि जब रोते हुए बच्चों की आवाजें आएंगी, बीमार बिल्कुल पिताजी की खांसने की आवाज आएगी, तो व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि यार मैं कैसे अपने पिताजी और बच्चों को खाना खिलाऊं, पिताजी की दवा हम्म, कैसे लाऊं। तो ऐसी बिल्कुल स्थिति में मानसिक बीमारियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और उसी का हम्म, खामियाजा है कि देखिए आज के दौर में आप हर अपने आसपास देख सकते हैं कितने लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट आज लखनऊ के एरिया में ही खबर आई कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार को खत्म कर डाला और अपने आप को भी खत्म कर हम्म, डाला। तो रोजगार के छिन जाने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पूरे समाज को दिक्कत होती है, और मानसिक बीमारियां बढ़ने में बहुत बड़ा कारण होता है रोजगार का छिन जाना। ओके सर, एक जी क्वेरी है, ऑफलाइन क्वेरी है सर। जी जी। चाइल्ड साइकोलॉजी को इस वक्त कैसे हम रिलेट कर सकते हैं डिप्रेशन से, और ऐसा कौन सा टिप है जो आप हमें बताएंगे कि हम अपने बच्चों को संभाल सकें और डिप्रेशन उन तक ना पहुंचे? देखिए बच्चों को हकीकत ये है कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन होने की संभावना इस दौर में थोड़ा सा कम है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके अंदर थोड़ा सा अदर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, फॉर एग्जांपल बिहेवियरल प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, इरिटेबलनेस बढ़ ओके सकती है, और इस तरह की जो डिसोबीडियंसी बढ़ सकती है, लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज वो बढ़ सकती है। लेकिन बच्चे हम्म, थोड़ा सा अभी कुछ भी समझिए, खुदा का फजल समझिए, बच्चे डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर है ना ओके उसका, क्योंकि डिप्रेशन होता तब है जब आदमी अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता है। और खूबसूरत बात यह है कि बच्चे पिछले जीवन के बारे में बहुत जल्दी सोचते नहीं है, वो आने वाले सपनों को ओके देख के खुश होते रहते हैं। ठीक है, हाँ, हम्म, लेकिन तो भी आप बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को अगर ध्यान में रखेंगे, तभी आप बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रख पाएंगे। और अपने खुद के और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए। सकारात्मक बातें, सकारात्मक लोग, सकारात्मक साहित्य और सकारात्मक घर का वातावरण बनाकर रखिए। ठीक है, जी बच्चा खुद भी अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान का मतलब दिन की शुरुआत कुछ वॉक से करें, फिजिकल एक्टिविटी से करें, घर के काम करें, सफाई करें, अगर आपको ईश्वर के अंदर श्रद्धा है तो भगवान की पूजा करें। और बच्चों को थोड़ा बहुत सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान लगाना चाहिए, एंगेज रखना चाहिए। उसके बाद उनके एंटरटेनमेंट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चों के ओके अंदर बोरियत महसूस ना हो। और बिल्कुल ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान देंगे, सबसे पहले अपना ध्यान के बाद में बच्चों का एकेडमिक एंगेजमेंट के बाद बच्चों का एंटरटेनमेंट, उसके बाद उनका खाना पीना, थोड़ा सा उनको आराम देना, और फिर उनको एकेडमिकली आप एंगेज करिए, तो आप देखेंगे बच्चों का ओके मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है, और आपकी जी भी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही ओके ओके आइए सर, है। जी अब हमारे पास कुछ ऑनलाइन क्वेरीज हैं, आइए वो ले लेते जी हैं। जी जी हमारे जी डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीके भटनागर सर। ही इज जी। आस्किंग अस that हम्म nowadays when physician हम्म cannot pay much time, to what हम्म। extent the talk therapy is effective apart from medical therapy? या, सो Yeah, कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? yes sir. Nowadays हम्म when physicians cannot हम्म pay much time, to what हम्म extent the talk therapy is effective हम्म apart from the हम्म। medicinal therapy? Okay, okay. Listen, जी the not wrong. They are trying to raise this awareness whether we should focus on the talk therapy or not. But yes I will suggest that this word talk therapy in itself is not that much required to be used here. Talk okay therapy is not scientific. There is in medical word there is nothing like talk therapy. What we discuss okay is psychotherapy. What we discuss is behavioral engagement. What we discuss is counseling. Okay, so okay talk therapy is a word which is used in layman term with normal people. In clinical okay field, in medical field, in the academic field, we use psychotherapies kind of word which are academically and medically supported. Okay, so sir now the question is that lots of जी people do not believe in the importance of psychological consultation and psychotherapeutic work and okay interventions. Okay, Mhm. but the thing is that about the things which we are less aware,
will lead us no impact to us. So it is high time for us to get familiarized with the importance of psychological interventions so that we can understand the areas where they can be applied. And Yeah, when I was talking to you, you yourself emphasized that it is very much important to understand the psychological functioning of an individual before prescribing any medicine. बिल्कुल So सही. in medical field also it is very much demanded and necessary to understand the individual psychological functioning, which will help Mm-hmm. us to take the better decision and treatment modalities in order to manage the symptoms. Okay, Okay, so the okay, talk therapy is a very layman term, I will say. okay. So we should basically like अगर हम टर्म को लेमैन भी लेते हैं तो टर्म वहां Hmm. तक ठीक है कि हमें बातें तो करनी चाहिए, लेकिन उसकी पूरी Hmm. साइकोलॉजी को समझना चाहिए एक्चुअली इस कंडीशन में. एग्जैक्टली ओके, हमको देखिए जो है ना कि अब ऐसे समझिए कि अगर हम थोड़ा सा बातों को इस तरह से यूज करें या इस तरह से उनका हम्म, प्रयोग करें कि ताकि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो जी, उपचार का एक तरीका बन जाएगा, उपचार का तरीका बन जाएगा, बिल्कुल, है ना। अब बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं. समझिए बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, आप उनको अच्छे से एक बार प्यार से बात कर लेते हैं तो ही वो कह देते हैं डॉक्टर साहब आधा बीमारी तो आपके पास आने से ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझ कह रहे रहे हैं. हैं, तो इसको हाँ, बोलते हैं असर। असर आप जी अपनी जी बातों जी, से पैदा कर सकते हैं और बचा हुआ असर आप अपनी दवाओं से तो पैदा कर ही देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. तो तो वो असर पैदा बातें करना हमें, बहुत जरूरी है। जी 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 बिल्कुल, वो बातें जी हमें वहां जी। बेनिफिशियल होंगी. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप. जी जी सर एक जी सेकंड क्वेरी है, हमारे हम्म डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनिल गौतम जी. वो पूछना जी। चाहते हैं, व्हाई मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस आर fearful टू विजिट देयर पेशेंट्स. टू विजिट देयर पेशेंट। जी जी जी, आजकल की कंडीशन का एक बहुत अच्छा सवाल है, ओके कुछ लोगों ओके ने ओके। मुझसे भी पूछा. जी, आप सर बताएं देखिए इसका आंसर. इसमें, हाँ देखिए आप ऐसे समझिए, देखिए जीवन तो सबको प्यारा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहेगा कि हमको जीवन प्यारा नहीं है। बिल्कुल ये ठीक कह अलग रहे हैं. बात है कि लोगों की जब जिम्मेदारियां आती हैं तो वो जीवन को तरजीह ज्यादा देते हैं, जीवन को तवज्जो ज्यादा देते हैं। तो जी, इस वजह से कई बार अपने उनके खुद के डर, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, उनकी अपनी उम्मीदें, ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर हावी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि अगर हम अपनी पेशेंट देखेंगे इस दौर में, मान लो किसी को कोरोना हुआ और हमें भी हो गया तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा, और मुझे ये लगता है कि अधिकतर लोग अपने जीवन को लेकर थोड़ा सा आशंकित रहते हैं, इस वजह से सोचते हैं ठीक है भाई, पेशेंट ना देखना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, कुछ दिन ऐसी काम चल जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल. मानता हूँ प्रिकॉशंस के हम्म, साथ अगर हम काम करें तो हम पेशेंट भी देख सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं, और सबसे अंतिम सत्य जो होना है उसे तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल. भी नहीं है कि बगैर किसी प्रिकॉशंस के साथ पेशेंट के बीच में चले जाइए। जिम्मेदारियों हम्म, का निर्वहन आत्मसंतुष्टि के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल. और अगर जिम्मेदारियों के साथ आप अगर अपनी काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए पेशेंट को देखने में भी आपको सुकून ही आएगा। बिल्कुल. जी। सर नेक्स्ट क्वेरी है हमारी, हम्म, इट इज आस्क्ड बाय डॉक्टर दिशा. What do you जी suggest to the patients who are already suffering from डॉक्टर साहब आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए क्योंकि यहाँ बिल्कुल थोड़ा सर. डिस्टरबेंस आ गया था। No, no issue, sir. हम्म Dr. Disha is asking, what do you हम्म suggest to the patients who are हम्म। already suffering from some mental disease? देखिए मेंटल डिजीजेस भी बहुत तरह की होती हैं। कुछ जी, मेंटल डिजीज ऐसी होती हैं जिसमें कि आप डायरेक्ट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल okay, डिल्यूजनल पेशेंट, फॉर एग्जांपल मैनिक पेशेंट, फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिक पेशेंट। अगर फ्रेश सिम्टम्स हैं, अगर फ्रेश जी, साइकोपैथोलॉजी है, कॉग्निटिवली डिस्टॉर्शन, कॉग्निशन जो है बहुत ही गड़बड़ है, तो ऐसे पेशेंट के साथ आप साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, इनिशियली नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट को मेडिसिनल सपोर्ट के आधार पे पहले सिम्टोमेटिक से असिम्टोमेटिक करना पड़ेगा। वंस द okay, पेशेंट हैज गॉट better understanding and insight, then possibly you can intervene some psychological intervention with the patient, because psychological work is always dependent on the availability of the willingness of the patient. If patient do not allow, knowingly or unknowingly, there are very mhm, less chances that you can do something on psychological level. okay, तो जो पेशेंट मेंटल, हाँ फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का पेशेंट है, वो भी एक मेंटल इलनेस है। डिप्रेशन के पेशेंट mhm, के साथ आप काम कर सकते हो, वो आपको कभी बोलता नहीं है, जल्दी नहीं बोलता कि नहीं नहीं मुझे इलाज नहीं कराना है।
ओके एंजाइटी का पेशेंट है, ओसीडी का पेशेंट है, पैनिक का पेशेंट है, ये लोग आपको सपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर एक हमारी जी। क्वेरी है, डॉक्टर भविता इज आस्किंग अस, हम्म। are there any physiological complications associated with depression? Yes, of course. It is the endocrine system which gets disturbed because of depressive features, or you can also say that the first and foremost physical symptom which can be seen in depressive patient is disturbances in their vegetative activities. Okay, स्लीप गड़बड़ हो जाएगा, हाई वो खाना पीना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, उनका जो है बाकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग भी गड़बड़ हो जाएगी, एंडोक्राइन जी, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी उनकी गड़बड़ हो जाएगी, उसके बाद जाके कहीं डिप्रेशन के कोर फीचर नजर आते हैं। तो हमेशा ये ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, कोई भी मानसिक बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें कि आपको फिजिकल डिस्टरबेंसेस देखने को ना मिले, बल्कि हकीकत यह है कि बहुत सारी, लगभग सभी मानसिक बीमारियों के उत्पन्न होने से पहले उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन में नींद और सेक्सुअल एनर्जी गड़बड़ हो जाएगी, मैनिया में फिर वही नींद, एपेटाइट और सेक्सुअल एनर्जी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, सिजोफ्रेनिया में फिर वही बता रहे हैं, नींद गड़बड़ हो जाएगी, एपेटाइट गड़बड़ हो जाएगी और सेक्सुअल एनर्जी गड़बड़ हो जाएगी। ओके। आई होप सर ये क्वेश्चन हमारे काफी सारे पेशेंट्स के लिए बड़ा रिलेटेबल रहेगा, जिनको जी डिप्रेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, जी सर एक नेक्स्ट क्वेरी है डॉक्टर शिवानी सिंह। शी इज जी। आस्किंग दैट हाउ टू एनकरेज समवन to take treatment for depression as this disease still carries a taboo in the society. या I hope दैट्स व्हाट, I या जी जी करिए, yeah, यू कैरी ऑन प्लीज। sir, this is a very nice question actually किया है अपने प्लेटफॉर्म पर भी, कि आदमी हम्म। किसी भी मेंटल डिजीज के लिए तो बोलता ही नहीं है, बल्कि डिप्रेशन को भी बड़ी तरीके से छुपाता है। हम्म। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी सर इस क्वेश्चन के आंसर जी पे? जी। देखिए, इसका जवाब भी हमारे आसपास, अपने लोगों तक ही छिपा हुआ है। हम ही ओके, लोगों ने तो सोसाइटी में डिप्रेशन को हवा बना दिया ना, हम ही ने तो बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल में मेंटल प्रॉब्लम को हवा बना दिया ना। और बिल्कुल। आप ये कहने में बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग ही तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसका सबसे लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ। हम अपने खुद जी की अगर एग्जांपल की बात करें, तो हम ही लोग कभी कंसल्टेशन के लिए नहीं जाते, हम ही लोग कभी अपने बच्चों को कंसल्टेशन के लिए नहीं ले जाते, हम ही लोगों को कभी अपने माँ बाप के द्वारा साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए नहीं ले जाया गया। जबकि ऐसा नहीं ठीक है कह रहे हैं। कि 30-35 साल की उम्र के दौरान कभी हमें साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस ना हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हम किससे उम्मीद रखते हैं। तो हम ही लोगों को, जैसे अब ऐसे करिए, बुखार होता है, हम उसमें बुखार में थोड़ा किसी से कहते हैं अरे नहीं जाना कहीं, चुप रहो, बुखार हो गया, बड़ी शर्म की बात हम्म। है। सोसाइटी में बिल्कुल पता है ठीक। बुखार ऐसी चीज है, होती है, ठीक हो जाती है, आती होती है, जाती ठीक हो रहती है, जाती हमें है। कोई टेंशन थोड़ा होती है। लेकिन जी मानसिक जी जी। बीमारी, उसके लिए हम टैबू बना देते, हवा बनाते, अरे ये तो बड़ी बुरी और शर्म की बात है, मानसिक बीमारी हो गई। तो जब तक हम अपने इस एटीट्यूड के ऊपर काम नहीं करेंगे, और एटीट्यूड के ऊपर काम करने के लिए ही जरूरत है कि हम इसको बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से सोसाइटी में रखें, बात करें। ओके और सबसे जरूरी चीज है, कभी भी अपने घर में अगर कोई मानसिक रोगी है, उसको छुपाएं नहीं। ओके। बहुत ही, जैसे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मानसिक परेशानी है। आगरा मेंटल हम्म। हॉस्पिटल में मैं उनको लेके गया हूँ, मैंने बताया है कि मेरे घर के सदस्य हैं, कृपया इनका इलाज करिए। जी और यकीन मानिए, मुझे इसकी वजह से आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, तब हम कैसे किसी को यकीन दिलाएंगे। भाई सलमान खान भी ओके। कोल्ड ड्रिंक पीता है, तभी तो लोग उसको देख के पीना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे समझ हैं। रहे जी हैं। तो जब बिल्कुल तक सर, हम बिल्कुल। शुरुआत नहीं करेंगे, तो हम कभी किसी को कैसे यकीन दिला पाएंगे कि मेरे भाई आप भी करो ये काम। तो सबसे बिल्कुल सर। पहले हमको खुद अपने कंसल्टेशन की बात करनी चाहिए, हमको अपने बच्चों के कंसल्टेशन की बात करनी चाहिए, और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ भी बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से बात करिए कि भैया डिप्रेशन ही हुआ है, आफत नहीं आ गई है। जैसे बुखार होता है ना, कहते हैं यार बुखार ही तो हुआ है, क्यों जी परेशान जी हो रहे जी। हो। बिल्कुल तो बिल्कुल इसको वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट विद आवर ओन सेल्फ, ओनली देन वी कैन ओके। स्प्रेड दिस मैसेज इन द सोसाइटी, लेट अस डू इट टुगेदर। या सर एक यस। क्वेश्चन है और इसे मैं शॉर्ट करके आपसे पूछता हूँ। क्या जी एंजाइटी और शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इस तरीके के जो मरीज हैं,
इनके लिए कोई ऐसा स्पेशल टिप है जो आप देना चाहेंगे इस टाइम में? देखिए, इस समय रिलैप्स प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी ओके। है ना? हाँ, ओके। जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, दिस इज हाई टाइम दैट दे कैन हैव देयर रिलैप्स, बिकॉज first the thing is that family member and caregiver themselves are going through with the challenges of the life. So या it is very much obvious that family member may not be that much available to the needs of the disturbed patient. So पेशेंट। their relapse prevention is very much needed. घर वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनकी दवाइयाँ, उनका डेली रूटीन, उनकी बाकी दिन भर का शेड्यूल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहे। इसी तरीके से आप ओके। डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को बेहतर कर सकते हैं। हो सके तो बेटर। इन डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को भी हल्का फुल्का घर के कामों में लगाइए, ओके। और आसपास में जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक बार उसका रिव्यू करा लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो दवाइयों को रिव्यू करा लीजिए, दवाइयां देना शुरू करिए, दवाइयां रेगुलर रखिए, उनको काम, घर के कामों में हल्का फुल्का लगाते रहिए, पेशेंट को भी बिजी रखिए, और जरूर भी ले सकते हैं, ताकि वो बूस्टर ओके। सेशन का काम करेगा, आने वाली प्रॉब्लम से उसको थोड़ा इम्यूनाइज्ड कर देगा। जैसे पोलियो का टीका ओके। अभी उसे दे दिया, 10 साल जी बाद जी जी। दुनिया में हमें अपने आसपास भी करना पड़ेगा ना मेंटल पेशेंट के साथ। या ओके। आई एम ऑडिबल सर? योर वॉइस वाज नॉट क्लियर। एडवर्टाइज कॉल, spam call, ओके। please. ओके ओके ओके। Okay, so do I सर need to repeat एक, something? नो नो नो, थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah. सर एक मेरी पर्सनल क्वेरी है आपके लिए। जी। सर एक, आपने तो 5-6 साल काम किया है मेंटल हॉस्पिटल में, तो शायद हम्म आप भी इस दौर से गुजरे हों जब लोग आकर ये बोलते हैं कि ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, पागल खाना है। जी 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 जी। तो सर एक, मुझे जो लगता है पर्सनली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, पागल खाना और मेंटल हम्म हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी मतलब दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं हमारे लिए। तो आप क्या कहते हैं सर, हम्म। पागल खाना कहाँ तक टर्म ठीक है और क्या हमें मेंटल हॉस्पिटल यूज करना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगा कि हमें इन दोनों में से किसी शब्द के ऊपर भी विरोध नहीं करना चाहिए, ओके। है ना? जी। अब ऐसे समझिए, कुछ दवाएं होती हैं जो डॉक्टर ही जानते हैं, लेकिन उस दवाओं का वो नाम पेशेंट को कभी नहीं बताते। उनको बोलते हैं जाओ ये गोली खा लो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक कह ठीक रहे है, हैं। उस नाम का इंपॉर्टेंस तो हमारे और आपके लिए है ना। सो मेंटल हॉस्पिटल इज अ टर्म विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू हु आर प्रोफेशनल, बट या rest of the population is very much comfortable with this word pagal khana, and why should we have any objection over this? उनको बिल्कुल बिल्कुल। करने दीजिए ना, उनके लिए यही बेहतर है। हम उनको उनकी जड़ों से क्यों हटा रहे हैं? हमारा या काम है बीमारी को ठीक करना। ठीक है, ठीक कह आज रहे हैं। आप मान लीजिए उनको, पेशेंट को मजबूर कर दिया कि नहीं मेंटल हॉस्पिटल यूज करो, इससे उनकी या भावनाएं थोड़ा बदल जाएंगे। हम्म। वो तो मेंटल, मतलब बीमारी तो बीमारी ही रहेगी। हमें थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की जरूरत पड़ेगी। वो जो ओके। इसीलिए बता रहा हूँ ना, जो भी देखिए, एक दुनिया होती है पेशेंट की, एक दुनिया होती है डॉक्टर की। तो पेशेंट की ओके। दुनिया और डॉक्टर की दुनिया को सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि मिक्स हो जाए। पेशेंट को अपने चश्मे से दुनिया देखने दीजिए, हम अपने चश्मे से हम्म। देखेंगे। हाँ, जहां जरूरत या पड़ेगी थोड़ी देर के लिए पेशेंट को डॉक्टर का चश्मा दे देंगे कि भाई अब ऐसे देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेरीज एक्चुअली मेरे सामने ही कुछ लोग नाम से, लाते हैं। हाँ, जी। नाम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ओके। उसी तरीके से कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली ये क्वेरीज ही हमारे सामने कुछ लोग लाते हैं कि एक साइकोलॉजिकल हम्म। इम्पैक्ट पड़ता है जब लोग पागल खाना कह देते हैं। कभी कभी तो हमें डर भी लगता था कि जी पागल खाने में हम क्यों जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वो अरे क्वेश्चन तो आपसे पूछा। ऐसे समझिए ना, मेंटल हॉस्पिटल वर्ड तो एकेडमिक है, ऑफिशियली अप्रूव्ड है। बिल्कुल पागलखाना तो लेमैन बिल्कुल। लोगों के द्वारा डेवलप किया गया है, सरकार ने थोड़ा बोला है। तो बिल्कुल जनता ठीक कह रहे अपने हैं आप। आप अपने शॉर्टकट ढूंढ लेती है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। और कई बार लोगों बिल्कुल को सर। उनके शॉर्टकट के साथ ही ठीक करने की जरूरत पड़ती है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं सर। वेरी जी। ब्यूटीफुल सेशन। एंड अब हम लेते हैं सर हम्म हमारी सेशन की लास्ट क्वेरी। और ये हम्म। क्वेरी हमसे पूछी है डॉक्टर एल राजपूत ने। मैम हमसे पूछना जी। चाहती हैं सर, व्हाट विल यू सजेस्ट टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन? आई थिंक सेशन को एंड करने के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जो मैंने अपने साथ अप्लाई किया है।
ऐसा जी, नहीं है कि जो हम मेडिकल के लोग हैं, जो साइकोलॉजी प्रोफेशन के लोग हैं, हम लोग को एंजाइटी नहीं होती, हम लोग को डिप्रेशन नहीं होता। होता है साहब, बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। होता है, लेकिन हमारी सोच थोड़ा सा फर्क हो जाती है, हमारे काम करने के तरीके थोड़े से फर्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस डिप्रेशन और एंजाइटी से बच सकते हैं। फॉर ओके। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हुँ, ऑफ द रियलिटी दैट दिस टाइम इज टफ, टाइम इज चैलेंजिंग एंड क्या? आई हैव टू सर्वाइव। मुश्किल हुँ, समय है, कठिन समय है, लेकिन मुझे जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना है मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला, हाँ भाई ये फेज चल रहा है, कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद ये तो चला ही जाना है। और हम इतने कमजोर तो नहीं हो सकते ना कि हम आज ये सोच लें ओहो अब तो ये कभी खत्म नहीं होगा, अब तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप इसको और थोड़ा सा कॉन्क्रीट लेवल पे देखें, तो मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव स्टेटमेंट की, पॉजिटिव ओके, थिंकिंग की, पॉजिटिव ओके। स्टेट ऑफ माइंड की। हमें जी, अपने मन को पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि ये दौर भी चला जाएगा, ये था नहीं तो रहेगा भी नहीं, ये ठीक ट्रांजिशन कह रहे फेज हैं। चल रहा है। बिल्कुल, समझ रहे बिल्कुल। हैं? और इस जी, ट्रांजिशन फेज में हमें क्या करना है कंस्ट्रक्टिवली, हमें ये पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला दिन की शुरुआत फिजिकल एंगेजमेंट से करिए। ये मैं ऐसे ही बिल्कुल। बार बार नहीं बोल रहा हूँ फिजिकल एंगेजमेंट, हुँ, हुँ। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट व्हेन यू आर फिजिकली कंस्ट्रक्टिवली एंगेज्ड देयर इज अपलिफ्टमेंट इन द मूड, you start feeling more positive vibes, you start feeling ओके, happiness, you start feeling peace of mind, because physical movement activate certain part of the brain which can brings more positivity, peace of mind and pleasant feeling in you. So ओके। सबसे पहले दिन की शुरुआत अच्छी करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जिसका भला कर हुँ, सकते हैं जरूर करिए, लोगों की मदद करिए, अच्छी बातें करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा काम करिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अच्छा साहित्य, या आप घर के काम भी कर सकते हैं। हाउस होल्ड जी, चोर्स ऑलवेज हेल्प्स यू टू फील बेटर। बहुत से लोगों की आदत नहीं होती है, लेकिन इस लॉकडाउन में एक्टिवली एंगेज रहें, हुँ, अच्छे हुँ। अच्छे काम करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। और एनवायरनमेंट को बेहतर रखने के लिए ही मैं सारी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। लोगों को हेल्प कर सकते बिल्कुल, हैं जरूर करिए, 150 रुपए दे के किसी की मदद कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है ऐसा करके। आपको सुकून बिल्कुल, आएगा कि बिल्कुल। चलो किसी जरूरतमंद की तो आपने हेल्प करी। अब ठीक जैसे बात अगर है इसको सर। आपको इसको और अच्छे से समझना है, तो आप सोनू जी, सूद का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मार्वेलस जॉब सर, मार्वेलस जॉब डन बाय है ना? हिम। या सोनू सूद का एग्जाम्पल ले लीजिए ना। ऐसा थोड़ा है उसके बिल्कुल, पास भारत सरकार से ज्यादा पैसा आ गया, या भारत सरकार के ठीक कह नेताओं रहे से हैं। ज्यादा पैसा आ गया है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेताओं के पास जी, तो बहुत पैसा है, लेकिन उसके जैसा हुँ, हिम्मत वाला काम तो नहीं किया। अब उसका स्टेट ऑफ माइंड समझिए जाके ना कैसा होगा। बिल्कुल सर। उसने अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा। और जब आप यकीन मानिए जो मैं बोल रहा था सच है, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपके इतने सारे पॉजिटिव न्यूरो केमिकल चेंजेस दिमाग में होते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग अबव टॉप ऑफ द वर्ल्ड। या ठीक राइट, है, तो हम बिल्कुल, ठीक है सोनू सूद के जैसा नहीं कर सकते, लेकिन एक की तो मदद कर सकते हैं। अपने घर में बिल्कुल। अपने आप को कंस्ट्रक्टिव तो कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। जी, जी, Maintenance of positive state of mind is one way to manage the ongoing psychological crisis due to the coronavirus pandemic lockdown state. बिल्कुल, 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 ठीक कह रहे हैं जी। सर। आपकी इस बात पे सर मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बात कहना चाहूँगा। एक पुरानी सेइंग है, हमने सबने सुनी हुई है, अगर रात आई है तो सवेरा भी आएगा। हम्म। बिल्कुल सर, आज ये कंडीशन हम्म। है तो कल हमारे पास पॉजिटिव हम्म। रिजल्ट्स भी होंगे, अगर हम खुद पॉजिटिव हम्म। हैं। जी जी जी, देखिए एक बहुत बिल्कुल, अच्छी, बिल्कुल। आपकी बात से मुझे याद आ गया कि किसी ने बहुत अच्छी 4 लाइनें बोली हैं। इस सेशन को एंड करने के लिए मैं उसे खत्म करता हूँ, ताकि थोड़ा सा लोगों को बिल्कुल सर। सनद रह जाए, याद रह जाए। कि जी, ख्वाब जी, का जी। रिश्ता है हकीकत से ना जोड़ा जाए। या जिंदगी कितनी खूबसूरत है इसको बता रहा है शायर, कि ख्वाब का रिश्ता है हकीकत से न जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से न तोड़ा जाए, और हर बिल्कुल। तरफ मरहले मर्ग तमन्ना है काबिज। मतलब हर हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ दुश्वारियां हैं। तो शायर हुँ, बोलता है, हर तरफ मरहले मर्ग तमन्ना है काबिज, ए जिंदगी फिर भी तेरा दामन न छोड़ा जाए। ख्वाब क्या का बात है रिश्ता सर। है हकीकत से न जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से न तोड़ा जाए। तो जिंदगी खूबसूरत है, इसको जी, खूबसूरत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। ऊपर वाले ने तो खूबसूरत बना के दे दिया है, अब इसको बिल्कुल, बना के बिल्कुल। चलना ये अपनी जिम्मेदारी है। और जैसे बिल्कुल सोनू ठीक सूद कह रहे अपनी हैं। जिंदगी बेहतर बना रहा है, तो उससे सीख लेके हम हुँ, लोग तो थोड़ी थोड़ी तो बना ही सकते हैं।
कुछ तो उसने कर ही दूसरों की बना दी, हमारे लिए बड़ी बात है हम अपनी बना के रखें। सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये 4 लाइनें जो आपने लास्ट में बताई हैं, ये हमारे डिप्रेसिव हम्म। स्टेट को बूस्ट करने के लिए जी और हमें एक जी पॉजिटिविटी जी प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जी जी जी। थैंक्स अ लॉट सर, मैं भी हम सबसे कामना कनेक्ट करता होने हूँ। के लिए। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल। और मुझे आप लोगों के बीच में अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया आपने। और आपके सारे पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स और आपके टीम एफर्ट को सलाम मेरा। और उम्मीद करता हूँ हम लोग फिर से मिलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ नमस्कार। सर। थैंक यू थैंक यू नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। Thank you everyone for being with us. This was Dr. Nakul Gautam with Dr. Lalit Singh from Lucknow. We are ending this session now. Thank you.